तुम 50 काम कर सकता है ट्विटर पे, तुम हंगामा खड़ा कर सकता है, तुम सामान नहीं बेच सकता है। Because I think Elon Musk is very much open कि भाई इसको तो हम WeChat बना के छोड़ूंगा दुनिया का। बहुत मुश्किल, औकात नहीं उसका। That is why Twitter is not a great platform for creators, क्योंकि ये ब्रांड कोलैब्स के अंदर सामने वाला क्या चाहेगा कि धंधा हो, धंधा तुम्हारा यहाँ पे होगा नहीं, तो ब्रांड कोलैब करके तुम उखाड़ क्या लोगे। बट आजकल की डेट में आपको लगता है कि एक सोलो कंटेंट क्रिएटर, अगर आप वीडियो कंटेंट की बात करो, अकेले कर पाएगा कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर ये निकालना? इट इज लाइक सेइंग कि आज से 20 साल पहले तुम हमको बोलता कि अच्छा हाँ आंडा भाई मैं जा रहा हूँ बम्बई, मैं हीरो बन जाऊंगा, तो कोई आपका आइडिया चोरी करता है, आपको कैसा लगेगा? अबे घंटा आइडिया जो है 2.5 रुपए किलो की औकात नहीं है आइडिया की, कर सकता है तो कर ले। अब किसी को अब तो तुम बोल रहे हैं ना आइडिया मैं दे रहा हूँ भाई, तुम इसको कॉपी करो और तुम बनाओ। So welcome guys to another episode of the Builders Club Startup Founders podcast. Today we have a very special guest, not just because he is one of the known faces now, one of the influencers, as if I may say, in the ecosystem, but also because he's a very close friend and he is actually my senior from my IIT Kharagpur days as well, and we have been in touch for close for almost 3 decades now, if I may say so. So I would love to welcome first Ravi Handa, the founder of handagafunda.com, which got acquired. He has been doing a lot of stuff actually, and he has a lot of hats. He has been wearing a lot of hats as well. And humble as he may be, he has also entered the content creation ecosystem and has been creating waves in a relatively smaller platform called Twitter. So Ravi, welcome to the Builders Club. Thank you, thanks Phil, glad to be here. You have been, so I would, a lot of people don't know this, but Ravi has been doing a lot of stuff actually. I mean, for the past 16 years that I have known him, he has actually meddled in a lot of stuff, finally fixated upon one thing called Handaga Funda. And I think proud of most of it. That's also there. But Ravi, I really commend Ravi because I think he was one of the very early movers in the edtech space. And I think one of the first platforms to start creating content even before I think YouTube became mainstream, if I remember correctly. Ravi, right, Ravi? To a certain extent, yes. देखो जहाँ तक content creation की बात है, I started blogging in 2001, 2002. तो उस टाइम पे तो ये होता था कि blogs वगैरह, so YouTube ads phenomena started much later. मतलब खुद ही 2005 में आया है. उसके पहले what Google used to do was कि अभी भी करता है. So there's still the AdSense program कि अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर you can embed some code into it. They had a very similar program going on at that point of time with Blogspot. Blogger.com. Blogger.com. So your URL used to be .blogspot.com. So blogs ke through you used to, that was my first trial with content creation, so to say. YouTube के ऊपर वीडियोस मैंने आई बिलीव एजुकेशनल वीडियोस मैंने 2008 में डालना शुरू कर दिया था. तो 2008 में तो कोई भी नहीं डालता था. मेरा रीज़न डालने का ये नहीं था कि मुझे YouTube पे कंटेंट क्रिएटर बनना, बिकॉज नो वन वाज डूइंग दैट. माय आइडिया वाज कि मेरे को नौकरी के अंदर जो है अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा. जो कहते हैं ना कि अरे हाँ लड़का है इसने और इनिशिएटिव लिया, ये किया. अब बाकी लोग जो इनिशिएटिव लेते थे वो एक्चुअली मतलब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं. एंड मैं फंडामेंटली थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का इंसान हूँ. तो ऑनलाइन क्या हो सकता है, बैठे बैठे जो हो जाएगा, वीडियो बैठे बैठे बन जाएगा तो बना के डाल देते इंस्टेड ऑफ. क्योंकि बाकी लोग क्या करते थे, वो लोग कॉलेजेस जाते थे, कॉलेजेस में जाके गेस्ट लेक्चर देख रहे हैं, वहाँ जाके लोगों से मिल रहे हैं. तो दैट इज हाउ अदर टीचर्स यूज्ड टू डू इट. I thought of doing it online because it did help with my career. As a business, edtech के अंदर मैंने 2012 में अपने ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चालू की थी. तब आसान भी था, कंपटीशन कम था, सो
that's why I picked that. Once again, offline कुछ भी चालू करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है compared to चालू करने के. नहीं, so I guess for all of you guys, I think आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आज का टॉपिक हम लोग का कंटेंट इकोसिस्टम के अराउंड है. And the reason why we actually got Ravi is because Ravi ने सारे प्लेटफॉर्म्स में हाथ पैर मारे हैं in a way. And he's also one of the very few people जो कि अभी न्यूली जो ट्विटर की मोनेटाइजेशन आई है. सो इंडिया में आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन हु आल्सो गॉट मोनेटाइज. सो आज के एपिसोड में विल आल्सो ट्राई एंड कवर दैट अ लिटिल बिट. बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट रवि, सो आई रिमेंबर थोड़ा सा पीछे से चालू करते हैं बिकॉज यू हैव हैड अ क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी. मतलब जाने अनजाने में ही सही, बट यू हैव बीन क्वाइट एक्टिव इन द सोशल मीडिया इकोसिस्टम. Fairly active, not proactive, I would say, but you have been present, you have been visible, and you have been fairly active. Not just for Handa Ka Fanda, but also I remember शुरुआत में जब I think if you're talking about 2008, 9, 10 की जो बात है, जहाँ पे I think you started your Handa Ka Fanda journey as well. I think Facebook was the main platform. And then मेरे ख्याल से as time progressed, Twitter थोड़ा बहुत वो एस्पिरेशनल वाले जोन पे गया, बट फेसबुक रिमेन डोमिनेंट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद आई थिंक 2000 पैंडेमिक के आसपास 2017-18 के आसपास जब जियो आया, तब मेरे ख्याल से जब यूट्यूब फटा, बिकॉज देन द bandwidth and everything kind of went up, people started creating videos, people got exposed to videos, and then that kind of became mainstream. I want to, just go through that whole journey of yours, because I think you primarily were using all the different social media channels to talk about education, talk about, what Handa Ka Fanda had to offer, and also making a few jokes here and there. So just wanted to go through your journey through all the different social media platforms and how you have seen these platforms evolve in general. I think the first social media platform where I connected with others was probably something called DC++. अरे yes, used to be college LAN के ऊपर, जहाँ पे, क्योंकि हम लोगों के कॉलेज में जैसे तुमको पता ही है कि एक तुम्हारा हॉल के अंदर थोड़ा बहुत अपना नेटवर्क रहेगा, बट किसी दूसरे हॉस्टल के अंदर कौन जनता किसी दूसरे बैच में, you would not really know. Absolutely. So that would typically come from the college LAN, and DC++ was the software, and I used to be fairly active on that as well. Once again, what me or you did on that particular platform, it's better that we don't talk about it, but we were there on the platform. फिर उसके बाद में I was a fairly active blogger at that point of time. This is mid-2000s. Then came Orkut for a little while. Orkut वगैरह का तो था वो एकदम पूरा जैसे कहते हैं ना कि पर्सनल ही था. There was no intention of anything from it. Facebook, again, when it came or started to become popular, there was always this thing of promoting something. तो जैसे कि मैं उस टाइम late 2000s or mid 2000s में I used to do quizzing a lot. और मैं क्विज मास्टर बन के भी मैं काफ़ी कॉलेजेस में जाके क्विजेस कंडक्ट करवाता था. So Facebook used to be a medium to popularize that fact that I'm available as a quiz master. तो मैं अपना नेटवर्क उस हिसाब से बना रहा था. 2011 में मैंने एक किताब लिखी थी which was related to history of modern businesses. Once again, I used social media heavily, blogs and Facebook pages and Facebook groups to promote that book. 2012 is when I started my business, and at that point of time, primarily SEO and Facebook. Twitter से थोड़ा बहुत धंधा आता था, YouTube से थोड़ा बहुत धंधा आता था, बाकी प्लेटफॉर्म्स, पागल गाय ग्रुप्स वगैरह से थोड़ा बहुत आता था, बट जो बल्क आता था वो Facebook से आता था. 13, 14, 15 तक आते आते Facebook के ऊपर इतने सारे ग्रुप्स बन गए, इतनी क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई कि उससे फिर हटना पड़ा. At that point of time, Quora started doing really well. So I used to, again, be really, really big on Quora. मैं Quora पे बहुत content create भी करता था. I, try to answer a lot of questions over there. Post that,
2016 में जियो आया, उसके बाद में से जब वीडियो फटने लगा, दैट इज वेयर आई बिलीव आई मिस द बस, कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपने आप को अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं जो चीज बेच रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट बेच रहा था। अब अगर मैं वीडियो कंटेंट बेच रहा हूँ और मैं फ्री वीडियोस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर कर चला जाता हूँ, तो मेरा धंधा ही बैठ जाएगा। तो that didn't gel well with what I was selling. So one idea was either I ignore YouTube और मैं अपना धंधा को करता रहूं. The other idea was I put the content on YouTube and I figure out something else to sell, कि मैं कुछ और बेचूं. मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये किया कि मैं क्या, यूट्यूब जान दो तेल लेने, मैं अपना धंधा बनाता हूँ, धंधा बढ़ाता हूँ, एंड आई कीप ऑन ग्रोइंग दैट बिजनेस. तो ये कहानी 2020 तक तो मोटा मोटी चल गई. 2020 आते आते हो गया कि भैया नाउ यू कैन नॉट, मतलब बिकॉज देयर इज सो मच फ्री कंटेंट दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब दैट यू कैन नॉट रियली सेल वीडियो कंटेंट. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू सेल ऑफ द बिजनेस. और थ्रू आउट दिस पीरियड एक्चुअली मैं ट्विटर पे भी मैंने चेक किया था, आई थिंक आई एम देयर फ्रॉम 2008-2009. ट्विटर पे भी 15 साल से हूँ. And I've always been there. I've always been a little active. कभी कुछ प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो जनरल गपशप वगैरह चल रही है. The monetization part has started last month. तो वो तो अगर नहीं भी था तब भी मेरी वहाँ पे गपशप चली रही थी. It's a great platform to connect. It used to be a great platform to connect with good smart people. पिछले 10-12 साल में तो उसका भी काफी, मतलब आई थिंक 2012 से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही है. उसके पहले when it was a little bit to a select audience, so to say, yes, it was a great platform to connect with people. So मुझे जो समझ में आ रहा है, तो बेसिकली 2011-12 के आसपास भी you were probably one of the first. So उस time these were known as the social networks, right? So these are places जहाँ पे आप friend request भेजते, they were trying to discover new friends. Very few people, not businesses, very few people actually looked at them as platforms to amplify what they were doing. मतलब of course there was an aspiration element कि हाँ भाई, मैंने उस टाइम इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी बेसिकली. इतने लोग ही नहीं थे यार. देख, इन्फ्लुएंसर तुम तब बनेगा जब तुम कुछ बेच पाएगा. तो खरीदार तो चाहिए, खरीदार ही नहीं है आज की डेट में भी. दैट इज द रीजन व्हाई I do not really believe in Twitter as a good influencer platform, is because your ability to sell is very very limited. तुम 50 काम कर सकता है ट्विटर पे, तुम हंगामा खड़ा कर सकता है, तुम सामान नहीं बेच सकता है. तेरे को चश्मा बेचना है तो तुम यूट्यूब पे जाके चश्मा बेच, तुम ट्विटर पे जाके चश्मा बेच, और तुम देखेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, YouTube will get you a lot more sales. Instagram will get you a lot more sales. But why is that? What's the inherent difference? What do you see? I think because in 2023, video has become very very important. टेक्स्ट को पढ़ने में, समझने में, दिमाग लगाने में, किसी को कन्विंस करने में कि हाँ जी ये स्टोरी है इसलिए तुम ये चश्मा खरीदो, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट. उतना जनता में पेशेंस नहीं है. That is one part of it. The second part of it is the kind of audience which exists. So if you look at it, एक तो text वाला part हो गया, but if you look at it, LinkedIn as well as Twitter, both of them are primarily a text-based platforms. Twitter के ऊपर जो जनता है वो थोड़ी सी ज्यादा टेक savvy, ज्यादा अवेयर, ज्यादा क्वेश्चनिंग जनता है. तो उनको तुम इतना आसानी से बोल के कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ना कि यार ये चश्मा अच्छा है खरीद ले, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर देम. इंस्टाग्राम पे जो जनता है या यूट्यूब पे जो जनता है, वो स्पेंडिंग बल्क ऑफ देयर टाइम ऑन इंस्टा और बल्क ऑफ देयर टाइम ऑन यूट्यूब. दे आर, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फार मोर गलिबल इन नेचर. दे आर इजियर टू कन्विंस कि अच्छा हाँ देखो मैं ये हूँ, आप खरीद लो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. ट्विटर के ऊपर जनता इज अ लिटिल मोर नेगेटिव बोल सकते हो, क्वेश्चनिंग बोल सकते हो, डिसर्निंग बोल सकते हो, डिपेंडिंग कि तुम कौन सी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे फॉल करते हो. बट यार मेरे को जो समझ में आ रहा है, बेसिकली द काइंड ऑफ ऑडियंस एंड फॉर्मेट, दीज आर द टू थिंग्स, राइट?
इसमें यार मेरे को एक बात बताओ. So again, just trying to go a little bit deeper onto this, and I'm purely trying to understand the so basically the role of these platforms have evolved over time, right? So मतलब आज सारी चीजें जो है, पहले एक जमाने में कनेक्शंस की बात होती थी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई, और अभी मोनेटाइजेशन की बात हो रही, राइट? कि पहले ये था कि यार मैं कितने सही बंदों से मिल सकता हूँ, उसके बाद हुआ कि भाई मैं कितना बड़ा अपना फॉलोअरशिप बना सकता हूँ, और अभी ये हो गया कि मेरी फॉलोअरशिप तो है, हाउ कैन आई मोनेटाइज दिस, राइट? सो आई बेसिकली जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि यार जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि वॉल्यूम वन इज ऑफ कोर्स, अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, द प्रॉब्ली द डिस्ट्रीब्यूशन साइज इज बिग, राइट? बट जो क्रेडिबिलिटी है आपकी, वो आपको नहीं लगता कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे you find that the credibility transfers much more higher in terms of convincing your followers? Not really. क्योंकि it is not just your followers, you need to convince. YouTube पे अगर कोई आके तेरा वीडियो देख रहा है तो वो तेरा ही वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पसंद आया, he is going to skip it. ट्विटर के ऊपर अगर ये है कि अगर उसको नहीं पसंद आया तो he will reply to it, he'll cross question you, and its cross question will also get a lot of views. मान ले कि मैं कोई एक ऐसी चीज बेच रहा हूँ, जैसे D2C ब्रांड्स वगैरह आजकल करती हैं कि अच्छा हाँ जी मैंने एक बहुत ही शानदार शैम्पू बनाया है और वो शैम्पू मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शैम्पू 500 रुपए में अवेलेबल है, मेरी इस ब्रांड का शैम्पू जो है वो 600 रुपए के अंदर अवेलेबल है. अगर मैं एक YouTube पे सेलिब्रिटी हूँ या मैं Instagram पे सेलिब्रिटी हूँ, तो जो मेरे कन्वर्जन्स रहेंगे वो एक ट्विटर सेलिब्रिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा रहेंगे. सपोज यू हैव अ मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एंड इफ यू हैव अ मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, यूट्यूब वाला बहुत ज्यादा बेच पाएगा. क्योंकि जो है वो यूट्यूब पे वीडियो डालेगा, कुछ लोग आके अगर उसका कमेंट करते भी है ना कि अच्छा अबे ये तो जो है 500 का सामान जो है तुम 600 में बेच रहा है, या इसका ये नहीं होता है वो नहीं होता है. कमेंट्स की विजिबिलिटी बहुत पुअर है. लिंक्डइन के अंदर भी तुमको ओरिजिनल पोस्ट दिखती है, उसके बाद में तुमको कमेंट्स की विजिबिलिटी बहुत पुअर रहती है. ट्विटर के ऊपर कमेंट्स की विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है. सेकेंडली ट्विटर के ऊपर फंडामेंटली जो रीट्वीट और कोट ट्वीट वाले फीचर्स है, उससे बहुत सारे नॉन फॉलोअर्स के पास में भी तुम्हारा मैसेज चला जाता है. अभी मान ले मैंने वो शैम्पू का ऐड किया और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का 500 का है और तेरी कंपनी का जो है वो 600 का है, मैं तेरी कंपनी का मैं डाला, 5 लोग मेरे को कोट ट्वीट करके गली आएगा. यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने वो वीडियो डाला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कमेंट के अंदर कोई गली आएगा, और कमेंट में कोई गली आएगा तो उन लोगों को भी पता है कि उनके कमेंट कितने लोग पढ़ने वाले हैं. कोट ट्वीट करके करेगा या रिप्लाई करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ देखो कम से कम मैं अपने फॉलोअर्स को तो जो है मैंने भला काम कर दिया, आंडा बेवकूफ बना रहा था और मैंने उनको बचा लिया. इस वजह से जो नेगेटिव फीडबैक लूप है वो ट्विटर पे ज्यादा है, इसीलिए ट्विटर पे बेचना जो है वो मुश्किल. Got it. And that's why probably शुरुआत में कस्टमर केयर की तरह इवॉल्व हो रहा था ट्विटर. आज की डेट में भी नाउ सब डिपेंड्स ऑन कि भाई तेरे पास में कितने लोग हैं ट्विटर के ऊपर लगाने के लिए. अगर तेरे पास में एक भी आदमी है who you can dedicate to Twitter from your company, his first job should be to reply to customers who are reaching out to you. If you have a Twitter account, if you have one person dedicated to your Twitter team, he should not be retweeting the CEO or sharing thought leadership quotes and whatever. If you have one person, that one person is on customer support. That is the baseline for Twitter for any brand that exists. उसके बाद में अब तुम बनो हीरो, करनी है मार्केटिंग तो करनी है, वो तुम पैसा डालो, लोग डालो, हो जाएगी. ट्विटर तो पिछले 1-2 साल में काफी चेंज हो गया, राइट? आफ्टर द होल इलॉन मस्क टेक ओवर एंड माइन्यूट चेंजेस, मतलब जैसे कहता है हल्ला हुआ है कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, मस्त भाई साहब आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, ब्लू टिक हो गया, बट ऑल ऑफ दोस चेंजेस दे आर प्रिटी कॉस्मेटिक नेचर. क्या लगता है आपको, मतलब you तो are any which way active, you have been following features, you understand, you're a little bit conversant with the algorithms as well. क्या लग रहा है, where do you think this whole thing is heading? Because I think Elon Musk is very
वेरी मच ओपन कि भाई इसको तो हम वीचैट बना के छोड़ूंगा दुनिया का। बहुत मुश्किल है, औकात नहीं है उसका वीचैट बना देने का, बिकॉज वीचैट बनाने के लिए तुमको सरकार भी चाहिए साथ में, वैसे ही नहीं बन जाता है। तो सरकार तो कभी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ में होने वाली है नहीं अमेरिका में, तो वो तो ना हो पाएगा, मतलब इफ दैट इज द ड्रीम दैट इज बीइंग चेस्ड। हाउएवर, कैन ट्विटर बिकम a reasonably profitable company with scale, and can it become a social media giant? It is a social media giant in terms of the power it commands, not in terms of the money it commands. Yeah, of course. Can he turn that power to money part? I don't know. I honestly don't know. I hope he does, because agar Twitter becomes a platform where Twitter is making a lot of money, then I as a creator on Twitter will also stand to make some money. तो वो मेरे एज एन इंडिविजुअल के लिए फायदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई हो जाए, बट मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम पैसे के पीछे करते जाओगे ना, एक तो वैसे ही जो ऑडियंस है वो वैसे ही पकती जा रही है, पकती जा रही है, पकती जा रही है। अब वो और पैसे का भी आएगा तो लोगों को फालतू चीजें ट्वीट करने का भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो क्वालिटी जो है, इफ यू स्टार्ट चेजिंग व्यूज एज द कोर मेट्रिक, टिल टुडे, टिल मोनेटाइजेशन स्टार्टेड, योर कोर मेट्रिक एज अ ट्विटर यूजर वाज कि मेरे कितने फॉलोअर हैं। दैट यूज्ड टू बी योर ब्रॉड मेट्रिक कि अच्छा हाँ मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। योर सेकंड मेट्रिक वाज कि मैंने कोई ट्वीट किया, उस पर कितने RTI लाइक आए। दैट यूज्ड टू बी ब्रॉडली द थिंग। Now, after this change which has come in, the key metric, or rather the only metric that people are looking at is मेरे कितने views हुए। अब वो followers से हो रहे हैं या retweet से हो रहे हैं या मैंने कुछ controversial tweet कर दिया उसकी वजह से हो रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अब views चाहिए, क्योंकि views से मेरा पैसा बनेगा। And that shift, because मेरे को अगर follower चाहिए तो मेरे को ये है ना यार, मेरे को इस आदमी को convince करना होगा, मेरे को बताना होगा। Before you delve into that, थोड़ा सा ना, how is the Twitter algorithm working now? उसके ऊपर थोड़ा सा बता दे। I think a lot of people don't know how it's working. How the whole monetization thing which is coming, and how's the algorithm working? Fair. So the initial idea of monetization when it launched around a month ago was that आपको 5 million views चाहिए होंगे हर महीने for a period of 3 months. That was the qualification criteria. So consistent 5 million views for 3 months. Then they changed it और बोले कि नहीं एक काम करो, आप 3 महीने में मिला के 15 million views ले आओ, which is relatively easier than getting 5 consistently for 3 months. Then they changed it to कि आप एक काम करो, 3 महीने में मिला के ही 5 million views ले आओ. So this actually shows that the only thing that they have cared about is views. That is one part of it. And if the only thing that Twitter cares about is views, very similarly, the Twitter users, the content creators will also only care about the views aspect of it. Also, how are these views being pushed? कि कैसे लोगों को ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं? एक ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ये रही थी कि भैया जितनी रीट्वीट आ रही हैं उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो कितने व्यूज आपको मिल रहे हैं ये ही इलॉन मस्क के आने के बाद में चालू हुआ है। साल भर पहले तक तो ये भी नहीं था कि आपको पता ही नहीं लगता था कितने लोग देख रहे थे, तो तुम रीट्वीट के पीछे ही भागते थे। अब एक तो तुमको व्यूज दिखने लग गए कितने मिल रहे हैं, और दूसरी चीज तुमको पता है कि पीछे इलॉन भैया जो है वो व्यू लेके ही तुमको पैसा देंगे, तो ऑल योर अटेंशन हैज गॉन टुवर्ड्स व्यूज। नाउ हाउ टू गेट मोर व्यूज? उसके लिए ओरिजिनल assumption was that the retweet is the most important thing, which to a certain extent it still is. क्योंकि अगर मेरे 100 फॉलोअर हैं और मेरे को कोई 50,000 वाला रीट्वीट कर देता है तो मेरा काम हो गया, बट हमेशा तो मुझे 50,000 वाला रीट्वीट करेगा नहीं। So what I need to optimize for is replies. If my tweets get more replies, तो जिसने मेरे को रिप्लाई किया है उसकी टाइमलाइन पे भी जाएगा, ज्यादा लोग इंटरैक्ट करेंगे, एल्गोरिथम उसको फेवर करेगा। So the very clearly as the metric, the shift has moved from followers or followers in the long term and retweets in the short term to views.
वो तो मेट्रिक शिफ्ट हो गया है. एंड इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आई वुड, if you give me an option that for someone who has less than 5,000 followers, which is bulk of the people on Twitter, 5,000 से कम फॉलोअर हैं तेरे, और मैं तू मुझसे पूछे कि आंडा मैं क्या करूं, पहले मैं बोलता था भैया रीट्वीट कर दे, अब मैं बोलूंगा कि लाइक कर दे और रिप्लाई कर दे. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप, if you are planning to grow on Twitter, if you are planning to grow your views on Twitter, optimize for a higher number of replies than likes and retweets and stuff. And how the numbers like, मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हो, YouTube का तो एक CPM का फंडा होता है, इसका क्या है, मतलब are there any standard numbers? अभी तक क्या पता चला आपको? भाई अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है. जो भी जनता बोल रही है वो सब अभी तक हवा में तीर चल, assumptions है. जैसे कि मेरा जो पहला पे आउट आया था, वो मेरा पहला पे आउट आया था 37,000 के आसपास का. अब ये जो मेरे को 37,000 का पे आउट आया है, ये 3 महीने का है या 1 महीने का है या 1 हफ्ते का है, मुझे यही नहीं पता है. तो मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूं कि ये कितने पीरियड का है? स्कीम ही 3 महीना पहले आई है. अब उसके बाद में क्या हुआ, मेरा जो दूसरा पे आउट आया है वो आया है 2,000 रुपए का. अब वो 37,000 से 2,000 रुपया ड्रॉप किया है. मैंने अपनी एक्टिविटी कुछ कम तो की नहीं है, कुछ ज्यादा भी नहीं की है. मैं अगर अपने व्यूज जाके देखता हूँ तो वो कंसिस्टेंट मेरे व्यूज मेंटेन्ड है. तो फिर ये कैसे हो गया? वन अजम्पशन है कि इसके बीच में 11 दिन का गैप है बिटवीन द फर्स्ट पे आउट एंड द सेकंड पे आउट. 11 दिन का गैप है, और 11 दिन का अगर 2,000 रुपया आ रहा है, तो अगर मैं उसको भी एक्स्ट्रापोलेट करूं तो 37,000 जानने के लिए तो 6 महीना 8 महीना लगेगा यार. 6 महीना 8 महीना से तो हो ही नहीं रहा है ट्विटर मोनेटाइज. तो व्हाट इज द लॉजिक दैट इज बीइंग यूज्ड इज नॉट वेरी वेरी क्लियर कि तुम कैसे कर सकते हो. द ओनली थिंग दैट इज नोन एज, व्हिच इज व्हाट मस्ट सेड, दैट व्यूज फ्रॉम वेरीफाइड यूजर्स मैटर अ लॉट. अच्छा, 5 मिलियन तो टोटल व्यूज आ रहे हैं, बट एड का कितना पैसा मिलेगा वो इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि कितने वेरीफाइड यूजर के व्यूज आ रहे हैं. सो इफ यू कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट ट्विटर, आई वुड से वेरीफाइड आदमी अगर तुम्हारी पोस्ट को रिप्लाई कर रहा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम खुद भी वेरीफाइड हो, वेरीफाइड आदमी रिप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में ऐड आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है. जितने ज्यादा एड्स आएंगे उतना ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा. सो बेसिकली व्यूज से नहीं, ये जो ऐड आ रहे हैं आपके थ्रेड पे उसके ऊपर पैसा मिलता है. दैट्स हाउ ट्विटर इज ट्राइंग टू मेक मनी. करेक्ट, एब्सोल्युटली. भाई वरना वो तुमको असाइन कैसे करेगा? भाई यूट्यूब पे भी जो तेरे वीडियो पे ऐड आ रहा है उसका तुमको पैसा मिलता है ना, साइड में जो यूट्यूब पे ऐड आता है उसका थोड़ी मिलता है. तो ट्विटर के अंदर भी वही कहानी है कि जो तुम्हारी ट्वीट पे ऐड आ रहे हैं, यानी तुम्हारी ट्वीट के जो रिप्लाईज हैं, इसीलिए तो रिप्लाईज इस तो आप फीड क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग अ फीड, एक जिसके अंदर आपका एक ऐड आ सकता है. तो इसीलिए तुम ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई क्रिएट करोगे तो उन रिप्लाईज के बीच में ऐड आने के चांसेस ज्यादा हैं. और वो ऐड देख कौन रहा है? वो तुम चाहते हो ब्लू टिक वाला देखे. तो अगर ब्लू टिक वाला तुमको रिप्लाई कर रहा है, खुद तो देखेगा कम से कम. तो दैट वे रिप्लाईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ट्विटर टुडे. इंटरेस्टिंग. Cool. तो ये तो अभी मेरे ख्याल से they've just started the whole monetization bit on the from a platform front, but there's I think ये मतलब जग जाहिर है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर आपके पास फॉलोअरशिप है, the platform money is usually just 10 to 20% of the overall money that you make. A lot of money, majority of the money is made by brands, the brand sponsorship and everything, brand collabs and all. ट्विटर पे अभी थोड़ा सा हम ट्विटर पे डीप जा रहे हैं, बाद में बाकी सब पे भी आएंगे, बट ट्विटर पे कैसा देखा है आपने? हाउ हैव यू सीन दीस ब्रांड कोलैब्स एंड ऑल हैपनिंग? भाई मैं बता रहा हूँ ना, दैट इज व्हाई ट्विटर इज नॉट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स, क्योंकि ये ब्रांड कोलैब्स के अंदर सामने वाला क्या चाहेगा कि धंधा हो. धंधा तुम्हारा यहाँ पे होगा नहीं, तो ब्रांड कोलैब करके तुम उखाड़ क्या लोगे? जैसे मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरे YouTube के ऊपर अभी जो मेरा चैनल है देसी फायर पॉडकास्ट, उस पे 4,000 4,500 के आसपास के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं.
और अभी तक तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, क्योंकि साल भर के आसपास होने को आ गया, बट उसके वो 40,000 घंटे या जो भी 4,000 पूरे आवर्स वाला रहता है वो मीट ही नहीं हुआ है. सो आई एम वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब कंपेयर टू ट्विटर. ट्विटर पे मैं 15 साल से हूँ, 25,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, काफी उसको व्यूज आते हैं. ट्विटर से भी मैं मोनेटाइज कर लिया हूँ. नाउ इफ आई गो टू ब्रांड्स कि भाई तुम मेरे साथ में ब्रांड वाइज कुछ कोलैबोरेशन कर दो, उनका सिंपल सा एक फंडा रहता है कि अच्छा हाँ हम तुमको एक लिंक क्रिएट करके दे देंगे, हम कुछ भी करके दे देंगे, उसके थ्रू तुमने जितने शैम्पू बिकवाए या जितने हमारे ऐप डाउनलोड करवाए उसके बेसिस पे अपन लोग डिसाइड कर लेंगे. अफिलिएट, बेसिक अफिलिएट. अफिलिएट वाला मॉडल रहता है. भाई अगर तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, तुम बहुत बड़े आदमी हो जाओ, तब तुम जाके उनसे वो पैसा डायरेक्ट मांग सकते हो. मैं भी उनसे पैसा अब डायरेक्ट मांगने लग गया हूँ, क्योंकि एफिलिएट वाले में तो कुछ हाथ में नहीं आता है. तो मैं भी उनको जाके बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे को 5,000 रुपया ही दे दे, बट तू दे मेरे को 5,000 रुपया. ये नहीं कि अच्छा हाँ जितना साइन अप हुआ, 8 साइन अप का मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, दिस दैट एंड ऑल दैट डज नॉट वर्क. तो मेरे को 5,000 रुपया दे, 5,000 रुपया के अंदर आई विल डू योर प्रमोशन. I have found it is easier to get 10,000 rupees for a plug in my YouTube video जिसके कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए मेरे को 10,000 रुपये देने के लिए फिर भी लोग मुझे मिल जा रहा है. ट्विटर के ऊपर मेरे को 5,000 रुपये देने के लिए, जबकि मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं और इतने सारे व्यू आते हैं, मतलब मेरी रैंडम ट्वीट के ऊपर जितने व्यू आएंगे ना, उतने मेरे चैनल के ऊपर आज तक सारे वीडियो मिला के नहीं हुए. फिर भी यूट्यूब के ऊपर लोग पैसा देने को तैयार हैं, क्योंकि यूट्यूब से कन्वर्जन होता है. जिंदगी भर तुम्हारा यूट्यूब वीडियो जो है ना, वो जिंदगी भर तक तुम्हारा ऐड रहेगा, हमेशा वहां पे तुम्हारा लिंक रहेगा. मैं एज एन एडवर्टाइजर भी अगर सोचूं, भाई मैं भी तो लोगों को पैसे देता ही था यार मेरी ब्रांड प्रमोट करने के लिए, जब मैं कोचिंग चला रहा था. आई ऑल्सो डिड दिस. भैया यूट्यूब की वैल्यू जो है वो ज्यादा है. मैं D2C कंपनीज में जिनसे बात करता हूँ, सबका ये इंस्टा पे बिकता है. सो इंस्टा, अगर मेरे ट्विटर की जगह इंस्टा के ऊपर 25,000 फॉलोअर थे, इस शक्ल के साथ में हो भी सकते हैं, बट अगर होते तो मैं बहुत ज्यादा कमा सकता था कंपेयर टू ट्विटर पे, बिकॉज इट्स इजियर टू मोनेटाइज. तो मतलब आपने दो चीजें कही, और अब थोड़ा सा हम सेगवे लेते हैं into the video content forms, because I think you talked about YouTube, you talked about Insta. I think YouTube पे भी you have a podcast जो मेरे ख्याल से relatively new podcast, the Desi Fire podcast, where you talk about how to gain financial independence at an early age. And I think आपने around 20-30 videos बनाए, around 4-5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं आपके अभी. should be around. Yeah, so you basically you have been in the video content ecosystem for a very long time, but this is the first time you are exploring YouTube as a medium just for content creation. If I may correct, say that's correct. I'll not say that कि मैं YouTube इसलिए कर रहा हूँ. देखो, I have been in the content creation space for too long. I have been in the video content creation space for too long. अभी after I sort of retired, pulled the plug, took a sabbatical, जो भी तुमको बोलना है, मेरे को कुछ तो एक आउटलेट चाहिए कुछ करने को. तो मैं अपना एक ब्लॉग चालू कर सकता था, मैं ट्विटर पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल सकता था, ट्विटर पे या लिंक्डइन के ऊपर, या मैं वीडियोस बना सकता था. ये मेरे ब्रॉडली 3 ऑप्शंस मेरे साथ में थे. ब्लॉग आजकल कोई पढ़ता नहीं है. ट्विटर वगैरह के ऊपर अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, ट्विटर पे या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी मैं टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डालता हूँ, वो कंटेंट रहेगा, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, फिर गायब है. इट हैज नो शेल्फ लाइफ. दैट इज व्हाई आई पिक्ड यूट्यूब की. इट इज नॉट रियली अ कंटेंट क्रिएशन एक्सरसाइज. इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाई आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग इन 2002 और व्हाई आई स्टार्टेड ट्वीटिंग इन 2009. It is and a way to output stuff. मतलब what's the intent then? Just to, मतलब it's a creative outlet then. It's kind of a creative outlet. It is a creative outlet. It gives me something to do and something to stay connected with the with what's happening. क्या है मतलब what's your experience been like this whole
video content creation, and what's your experience been with YouTube in general? See, video content creation ka, it used to be, so the last time when I did serious video content creation was probably 2012, 13, 14. तब मेरे को ये था कि मेरे को अपना धंधा पॉपुलराइज करना है, तो मेरे को यूट्यूब पे डालना है, मेरे को फेसबुक पे डालना है, तो मैं वीडियो बनाता था, सब जगह डालता था और अपना धंधा प्रमोट करने के लिए मैं करता था। तब से लेके अब के अंदर जो मेरे को मेन फर्क नजर आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर। कि तब क्या होता था, अगर तुम सही कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, जनता बैठ के सुन लेगी, देख लेगी। अब वो फर्क आ गया है। अब जनता की एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे चश्मे के अंदर लाइट शाइन कर रही है, पक्का वीडियो के ऊपर आके कोई ना कोई कमेंट मार देगा कि अरे आपके चश्मे में लाइट शाइन कर रही है। बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट इट टू बी बेटर, पीपल एक्सपेक्ट द बैकग्राउंड्स टू बी बेटर, पीपल एक्सपेक्ट द वीडियोस टू बी एडिटेड नाइसली, व्हिच वाज नॉट द केस अर्लियर। मेरा जो कंटेंट वाला पार्ट था, जो क्रिएटिव आउटलेट वाला पार्ट था, वो पहले भी था, वो अभी भी है, वो तो मेरा स्टैंडर्ड वही है जो व्हिच इज व्हाट माय लेवल इज। वीडियो प्रोडक्शन का लेवल भी मेरा वही है जो आज से मेरा 10 साल पहले था, बट जनता बहुत आगे जा चुकी है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग चैलेंजेस दैट आई एम फेसिंग, बिकॉज आई सी अदर पीपल पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन if I am talking about NPS and if there is someone else who is also talking about the same topic but with much better production values, मैं खुद भी अपना नहीं देखूंगा यार, क्योंकि बात तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, फैक्ट तो हम लोग वही दे रहे हैं। A+B होल स्क्वायर क्या है, वो तो चाहे मैं बोलूं चाहे मोदी जी बोले, वो तो रहने वाला सेम ही है। बट प्रोडक्शन वैल्यू क्या है उसकी, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। वो चैलेंज आज की डेट में। तो आप बोल रहे हो कि इट नीड्स टू लुक गुड नाउ, इट नीड्स टू लुक गुड नाउ। और मैंने ये भी देखा है कि यार आई थिंक द what you're saying now actually matters less than how it is being said. मतलब usually basic चीजें versus a little bit more complex thing, जो basic चीज है वो usually ज्यादा consume हो जाती हैं versus a little bit of a more sophistication या a little bit वो तो मतलब you will always have that key, everything will have its own audience. So it is unfair to compare the basic versus the complicated stuff. What you need to compare is the same thing that is being talked about by person X versus person Y, and what is the production value that those folks have. Now, suppose this particular podcast that the two of us are doing, we are doing it in a certain fashion. इसकी बजाय अगर हम लोग एक किसी बढ़िया से बीच फ्रंट रिजॉर्ट के ऊपर जाके 4 कैमरा लेके, लाइट लेके, मस्त बैकग्राउंड के अंदर ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस वगैरह जैसा होता है, वैसा कुछ कर रहे होते, it would get a lot more views. That is obvious. B, more people will actually have the ability to sit down, listen and understand and watch the whole video. क्योंकि अब उनकी एक्सपेक्टेशन हो गई है यार कि मैं खाली 2 लोगों को ऐसे बैठ के नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मेरे को चाहिए एक सर्टन की, अच्छा हाँ बीच में वेटर आ रहा है और हम लोग जो है वो ड्रिंक देके जा रहे हैं, उस पर हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, दैट इज नीडेड। क्योंकि पहले नहीं था, पहले 2 लोग बात कर रहे होते थे, हाँ हम खुद सुनता था यार, मतलब इफ यू गो बैक 10-15 years, यूट्यूब के ऊपर तो कंटेंट आता ही था जहाँ पे 2 लोग बैठ के बात करते ही थे। एक इंडिविजुअल्स के भी लेक्चर्स जो है हम लोग बैठ के सुना करते थे। आज की डेट में मैं भी अगर लेक्चर्स सुनने जाता हूँ, सो आई ऑल्सो प्रिफर इफ द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड द वीडियो क्वालिटी इज better. But how important do you think is consistency to be successful on these platforms, and why? यार कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। सो इफ you are not producing content consistently and regularly and high quality content, तो जो तेरे खुद के followers बने हैं who have come in with a certain expectation, तुम अगर अपनी तुम उसी ऑडियंस को रिटेन नहीं कर पाएगा, नई वाली को तो ग्रो करना तुम भूल जा। Consistency is very much required for the existing audience and they need to continuously get value
from you as well. बट इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉब्ली लेट मी चेंज दैट टर्म, फ्रीक्वेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ फ्रीक्वेंट यू नीड टू बी. चलो आप मान लो आप महीने में एक निकाल रहे हो वर्सेस हफ्ते में एक बार निकाल रहे हो वर्सेस दिन में एक बार निकाल रहे हो. हाउ डू यू सी दिन में एक बार निकालना इज बेटर देन हफ्ते में एक बार निकालना, हफ्ते में एक बार निकालना इज बेटर देन महीने में 2 बार निकालना, महीने में 2 बार निकालना इज बेटर देन. बट व्हाई आई मीन देखो बेटर होनी एक बात है और एक टिपिंग पॉइंट वाली बात आती है ना कि यार आप महीने में एक बार निकालोगे चाहे आप 3 साल तक निकालते रहो वर्सेस आप हफ्ते में एक बार निकाल रहे हो, तो देयर माइट बी अ चांस कि चल 6 महीने बाद थोड़ा सा आपको अपटिक दिखना चालू हो. देयर इज अ हॉकी स्टिक वेयर आई मीन हैव यू, बिकॉज यू ऑल्सो आप मतलब आप निकाल रहे हो, आपका भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, दो आप बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं निकाल रहे हो. how have you seen कि does it matter कि यार ये मेरा गलती है, ये मेरा शॉर्टकमिंग है कि मैं रेगुलरली नहीं निकाल पा रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन दी सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट यू हैव. सपोज अगर मैं यूपीएससी के सीसैट एग्जाम के लिए पढ़ा रहा होता, फॉर दैट आई बिलीव 2 videos a day is what is needed. अगर मैं ये फाइनेंस रिलेटेड ये सब जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ देसी फायर पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए आई बिलीव एन आइडियल वुड बी 1 video a week. I am right now I'm averaging 1 video a month. So that is not a conscious decision that I've taken. That is a shortcoming that I have. Ideal for, let's say, the sort of podcasts etc. that you are doing. अगर तुम ऐसे podcast कर रहा है, you need to have, in my opinion, 1 podcast a week and the time should be pre-decided. हर Friday शाम को 9 बजे मिलिए सोहेल खान से. So that all of your subscribers know कि अच्छा हाँ शाम को आज Friday शाम को 8 बजे जो है ये आएगा पॉडकास्ट. पूरा हफ्ता तुम उसको प्रमोट करो YouTube की कम्युनिटी के थ्रू, तुम्हारे बाकी चैनल्स के थ्रू, कोई ईमेल लिस्ट है उसके थ्रू, ट्रेलर्स के थ्रू, एंड हैव अ फिक्स Friday 8 PM is for a podcast. I believe that is the most appropriate time. एजुकेशनल कुछ कंटेंट है जैसे कि आप किसी चीज़ की कोचिंग करवा रहे हो पढ़वा रहे हो, उसके लिए तो प्रोबेबली डेली इज द मोर अप्रोप्रिएट थिंग. महीना में एक तो मतलब तुम ऑलरेडी तुम रे डालियो लेवल पे बैठा हुआ है, तुम उस लेवल का आदमी है कि तुम बिल गेट्स है, तुम बोलने आ गया लोग सुनने आ जाएगा, तो तब तुम उस लेवल पे, तो देन मे बी 1 video a month would be appropriate. So is it because of the volume of content which is out there now कि जनता भूल जाएगी आपको? हाँ बिल्कुल, 1000 कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, यू आर ऑलवेज competing with someone else, you are always trying to ensure that the Twitter algorithm favors you, and for that regular consistency is the piece. तो आज algorithm की बात नहीं है यार, इंसान की भी बात है. मेरे को पता होना चाहिए ना कि अच्छा हाँ इस आदमी का कब क्या कहाँ कितना कंसिस्टेंटली कैसे आता है, so that I can plan my schedule around it, I can keep in mind. टीवी सीरीज का याद रख ले, अब सबके डंप आ जाते हैं, वरना पहले तो यही होता था कि अच्छा हाँ यार अगला एपिसोड जो है वो आने वाला है और वो संडे शाम को आएगा, तो हम लोग बैठ के प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर एक चैनल की तरह बेसिकली. एब्सोल्युटली. बट आजकल की डेट में आपको लगता है कि एक सोलो कंटेंट क्रिएटर, अगर आप वीडियो कंटेंट की बात करो, अकेले कर पाएगा कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर ये निकालना? सोलो कंटेंट क्रिएटर एक ही हो, बट उसके साथ में अगर ये उसको मे बी 2-3 लोगों की टीम चाहिए टू बिगिन. 2 लोगों की भी अगर उसके पास में टीम है, और ये 2 लोगों की भी टीम कोई बहुत ज्यादा हाई फाई टीम नहीं, पार्ट टाइमर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके साथ में वो लग के काम कर रहा है, तो आराम से वो कर सकता है. बट इट इज लाइक सेइंग कि आज से 20 साल पहले तुम हमको बोलता कि अच्छा हाँ आंडा भाई मैं जा रहा हूँ बम्बई, मैं हीरो बन जाऊंगा क्या? जितनी प्रोबेबिलिटी हीरो बनने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने की है. एंड सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर से मेरा मतलब है कि तुम साल का 50 लाख रुपया इस धंधे से निकाल रहे हो. तो मतलब आज की डेट में तो मेरे को लगता है यार मूवीज के अंदर जाना जो है ना वो ज्यादा आसान है कंपेयर टू बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर हु मेक्स 50 लाख रुपीस अ ईयर कंसिस्टेंटली. मतलब एक बार तुक्का लग गया की बात नहीं है, साल दर साल तुम बना पा रहे. वो तो ब्रांड क्रिएट हो गया है उसी का, तभी होगा हो सकता है.
अदरवाइज लोगों का होगा, कितने लोगों का होगा, कितने लोग कोशिश करते हैं, उसमें से कितने लोगों का होगा दैट मतलब तुम भाई पिक्चर का हीरो बन जा, तुम आईएएस बन जा, तुम आईआईटीएन बन जा, तुम डॉक्टर बन जा, वो सब बनना आसान है कंपेयर टू क्योंकि उन सब चीजों के अंदर जो है ना देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत एलिमेंट विच इज देयर। यहाँ तो बहुत मुश्किल है ना बोलना ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसकी शक्ल अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, क्या क्लिक किया क्या नहीं किया, कब चीजें क्लिक कर जाए। कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि 4-4 5-5 साल से बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं और 4 साल बाद में फिर सडनली दे बिकम फेमस। एक वो म्यूजिशियन था ना उसका किसी का यशराज मुखाते, यशराज मुखाते हैं, तो बेचारे का देख तुम कब से कर रहा है वो ये सेम काम, अब हिट हुआ। तो नब्ज उसकी वो वही है, हिट एंड ट्रायल से ही होता है उसका। देयर इज नो फॉर्मूला ना। तो हमारा वो है ना कि वी हैव बीन टॉट कि हम जिस तरीके से बड़े हुए, हमारी जो लर्निंग रही है ना, हमारा वो होता है कि यार ये टेक्स्ट बुक है, ये फॉलो कर लो फॉलो तो कर हो लो। जाएगा। हाँ तो कोचिंग कर रही है, अबे लोगों ने इसके कोर्स बनाने चालू कर दिए हैं या यूट्यूब पे, कैसे बड़े स्टार वाले इसका कोर्स है। सो दैट कोर्स विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ गाइडलाइन। यस, 100% agree. Will it make you a successful content creator? I don't think so. क्योंकि उसमें अभी भी बहुत ज्यादा एलिमेंट ऑफ लक जो है वो इन्वॉल्व है। हर आदमी हीरो नहीं बनता है। Do you think there is a science to it? There is. So there is definitely a certain amount of hygiene factors that you need to take care of. कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसे I don't think I am doing it. I don't think you are doing the basic factors also. हम लोग उतनी चीजें नहीं कर रहे हैं जो कि मेरे को पता है कि करनी चाहिए या जो कि I absolutely agree. हम लोग उतना भी नहीं कर रहे हैं जो कि हमको पता है। तो अभी तो प्लस देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट वी डू नॉट इवन नो। इतना पता है, इतना एक्चुअल करना होता है, हम लोग तो उसके भी नीचे है। तो पहले उतना करो जो कि पता है, फिर उसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं वो करो। सो दैट लेवल ऑफ साइंस इज देयर। That level of science will take you to whatever your peak is. But your peak might be 5 lakh rupees a year. Your peak might not be 50 lakh rupees a year. लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा वाला गेम है ना ये तो पूरा। आप परसेंटाइल का गेम है यार। तो मतलब IIM गया है तो आइडिया परसेंटाइल का तुमको होगा ही कि भाई देख गधे से गधे बच्चा भी जो है ना मेहनत करेगा तो 90% 92% ले आएगा। मतलब तुम मेरे को किसी भी बच्चे को पकड़ा दे 6 महीने के अंदर उसकी 90% में ला दूंगा। बट क्या मैं किसी भी बच्चे की 99 ला सकता हूँ? नहीं। तो वो साइंस जो है, जो मेथड है, जो कोचिंग है, जो गाइडेंस है, उससे आप 90 पे पहुंच जाओगे। 90 से 99 पे जाना है, वो तुम्हारा खुद का टैलेंट है और किस्मत। वेरी सिमिलरली इन यूट्यूब, इन Twitter, in any sort of content creation game, you keep the basics right, you will get to a certain level. You will be able to monetize, you will be able to make some money from it. Will you be able to make a career out of it? That career के लिए जो talent चाहिए, career के लिए जो किस्मत खुलनी चाहिए, वो सबका नहीं होगा। Not everyone will have the talent, not everyone will have the luck for it. Very interesting. अब लास्ट सेक्शन है हमारा which is the long form video versus short form video. Right? So I think YouTube के बारे में हमने बात कर लिया, but I think इंडिया में TikTok उतना है नहीं. But Instagram is still big and a lot of people they say कि यार YouTube मतलब relatively if you are creating into video, start with Instagram and then you can graduate to YouTube. And that's primarily because कि यार छोटा है, कम है, लेकिन I think the algorithms work a little bit differently on Instagram. What's your take? आप मुझे थोड़ा सा I agree with you कि if you are thinking purely in forms of a content creator कि भैया मेरे को content create करना है किसी भी चीज के लिए, तो या तो we get into the details of what sort of content and what you are trying to achieve out of it. If that is not there, my blanket answer will be yes, you need to go with Instagram. क्योंकि Instagram की जो ऑडियंस है वो तो और बर्बाद घटिया ऑडियंस है यार। उनको तुम थोड़ा सा टिटिलेट कर देगा, तुम थोड़ा सा रिवीलिंग क्लोथ्स पहन लेगा, तुम थोड़ा सा झकास वाला एडिट्स दिखा देगा, यू विल गेट फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स अ लॉट मोर इजीली। मतलब तुम और मैं नहीं,
2 में नहीं, but it can be relatively easily done. और मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे लिए भी और मेरे लिए भी, हम लोग के लिए भी, अगर आज की डेट में सपोज मैं हूँ, आई बिलीव मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर 50,000 फॉलोअर लाने और मेरे को यूट्यूब के ऊपर 50,000 फॉलोअर लाने, और दैट इज माई ओनली मैंडेट। तुमको सिर्फ ये करना है। अब कैसे मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ला सकता हूँ, मेरे को तुम अंधा पैसा दे दे, मैं बैठ के जो है, मैं भी जो है ना, तुम मेरे को अंधा पैसा है, पैसा इज नॉट अ लिमिट, एंड यू टेल मी व्हाट इज इजी टू गेट 50,000 ऑन इंस्टा और 50,000 ऑन यूट्यूब। इवन फॉर मी, इवन फॉर यू, 50,000 ऑन इंस्टा इज गोइंग टू बी ईजियर, बिकॉज हम लोग एडिट्स कर करके, छोटे वीडियोस हैं उनकी हम अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर हम अच्छे से बैकग्राउंड डाल सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कंटेंट पुश आउट कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं 4 वीडियो रोज डाल सकता हूँ यार, यूट्यूब पे मैं 10-10 मिनट के 4 वीडियो डालूंगा, मर जाऊंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इंस्टा इज डेफिनेटली easier as a platform for everyone involved. So if you plan, and it sells better as well. But यही है कि क्या वो करने की, जैसे मेरी तो श्रद्धा नहीं है कि मैं तो उसमें मेहनत ज्यादा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार यूट्यूब पे आप हफ्ते में एक बार भी डाल लोगे, इंस्टाग्राम पे तो आपको दिन का 2-3 डालना पड़ेगा भाई, कुल टू बी रेलेवेंट। अब मेहनत का पॉइंट आ जाता है ना, कि तुम यूट्यूब पे भी जो काम कर रहा है, तुम यूट्यूब पे भी मेहनत नहीं कर। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर मेहनत तुम सीरियसली करना चाहता है, have a look at the quality of videos which a lot of other even Indian podcasters के तुम वीडियोस वगैरह देखेगा, तो देखो वो लोग कितना मेहनत करता है, कितना अच्छे से करता है, किस टाइप का वो लोग गेस्ट बुलाता है। कामत के शो के ऊपर कौन आता है यार? बियानी आ रहा है, बड़ा बड़ा लोग आ रहा है। तुम्हारे शो पे कौन आ रहा है? रवि आंडा आ रहा है। तुम कहाँ से कुछ काम होगा? तो और अगर यही मैं बता रहा हूँ, तुम ये शो चला रहा है, तुम ये शो बम्बई के अंदर बैठ के चला रहा है, एंड यू गेट टॉप पीपल ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ द मनी दैट यू थ्रो एट इट, द ब्रांडिंग दैट यू थ्रो एट इट। तुम बोल कि हाँ जी, ये जो पॉडकास्ट होगा यूट्यूब पे ही, बट इसके ऐड में टीवी पे चलवाऊंगा, अपने आप तुमको बड़े बड़े लोग आने को तैयार हो जाएंगे। अभी भी काफी सारी बड़ी जनता आती ही होगी, but they are coming out of your connections. They are not coming because your podcast is famous. तो जानता है, तेरी यारी दोस्ती है, जान पहचान है, इसलिए कोई बड़ा आदमी फिर भी आ जाएगा। But for those guys, Coffee with Karan is the most popular podcast in India. Yeah. You need that level of production values to be there. बड़ा लोग आएगा, बड़ा लोग आके वो ट्वीट करेगा, बड़ा लोग आके अपने इंस्टा से शेयर करेगा, मैं सोहेल के पॉडकास्ट पे गया था, अपने आप पॉडकास्ट हिट हो जाएगा। परसेप्शन एंड पैसा फेंको, चलाओ भर के। एक बात बताओ, आई ऑल्सो वांट टू टच अपॉन अ लिटिल बिट ऑन द टोनालिटी, ठीक है? सो आई थिंक यू, मतलब वो आप अभी एक कॉमिक वाला एलिमेंट लेकर के आ रहे हो in your communications, and I think this has been a fairly new angle. You have always been a little bit sarcastic, but now you have taken it to a next level. You also very recently did a small roast as well on Startup. मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा it goes well. So is this a conscious call that you have taken, or is this something which has just evolved? And how has been the reception? So see, I was always fundamentally this, कि हंसी मजाक करना वो सब हमेशा से ही था। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को डर रहता था कि अरे भैया बॉस को बुरा लग जाएगा, किसी स्टूडेंट को बुरा लग जाएगा, कभी कोई जो है। इस वजह से मान ले मैंने एक जोक मारा और वो जोक किसी को बुरा लग गया, उस वजह से मेरे एक स्टूडेंट ने कोर्स नहीं लिया, तो मेरा धंधे का नुकसान हो सकता है। That was always the thing. Whenever I was in a job, तो मेरा बॉस मुझसे नाराज हो सकता है अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, जो कि मैंने तो एज अ जोक बोला है, बट सामने वाले को नहीं अच्छा लगे तो नहीं लगे। अभी आज की डेट में मैंने एक जोक मारा है ऑन अनअकैडमी एंड बायजूस। I couldn't have done that when I was working at Unacademy. तो
बिकॉज आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनीवन, तो अब मेरा फ्रीडम है कि अब हम कुछ भी बोल सकता हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, तुम गलिया देगा। जब तक मैं सरकार के खिलाफ में, जब तक मैं मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक तो मुझे घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। और उनके खिलाफ भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ alluding to it in a certain way that I do not like it. As long as it is not in your face, तब तक ठीक है। बट ये मैं पहले तो नहीं कर सकता था, जब नौकरी है, धंधा है, 50 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब क्या उखाड़ लोगे? नहीं, बट हाउस द रिसेप्शन बीन? बढ़ा है? आपको लगता है लोग ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा मजा आ रहा है? बिकॉज लोग, I'll tell you why I'm asking you this. लोग कहते हैं कि ऑन इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तो ये जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती है ना, कि या तो ह्यूमर पकड़ो या फिर फियर पकड़ो या फिर आप यू पुट अप सेक्स, यूजुअली दीज वर्क इन कंटेंट। तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, मतलब मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कॉन्शियसली किया कि फिर आपने एक दिन डाला, फिर आपको लगा यार फक इट, जस्ट स्टॉप गिविंग अ शिट। यार अबे बकचोदी तो मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। पॉइंट यही रहता था कि पहले थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ता था, कॉन्शियस होना पड़ता था कि अच्छा टीचर हो तो ये बात तुम कैसे बोल दोगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कई बार लोगों ने डाल के रखी, कई बार खुद एक वो लगाम सी थी। अब वो जो सेल्फ सेंसरशिप है, आई एम नॉट सेइंग इट्स जीरो राइट नाउ, but the self censorship has definitely gone down, and which brings out the funny side of things. Interesting. तो यार अब मेरे ख्याल से जाते जाते it was the end. Just wanted to ask you the usual standard questions. थोड़ा सा कि यार as a content creator, एक तो यार आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी आप थोड़े बहुत हो ही, तो एक तो एज अ फाउंडर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब what are the things that you would want to, anybody who's starting fairly new in the content ecosystem, क्या है, what are the top 2-3 things which you should not get started in the content creation ecosystem? ये मतलब ये जो है ना शौक वाली चीजें हैं, ये धंधे वाली या नौकरी वाली या पैसा कमाने वाली चीजें नहीं है। लोगों को लगता है इससे पैसा, मेरे को तो मतलब कंटेंट क्रिएशन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुम आज की डेट में 11वीं-12वीं बच्चों के से बात करेगा, मेरा होता रहता था यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूबर, अरे पगला उगला गए भाई, नहीं बन पाओगे तुम यूट्यूबर। इतना मुश्किल है यूट्यूबर बनना, इतना मुश्किल है उससे एक करियर अपना बनाना, तुम सोच नहीं सकता है। और लोग यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो आसानी से नहीं भाई, तुम IAS बन जाएगा, वो ज्यादा आसान है यूट्यूबर बनने के। 1500 IAS निकलते हैं साल के, कितने यूट्यूबर निकलते हैं जो कि हर साल 50 लाख रुपए वाले ऐड हो रहे हैं। द नंबर्स आर जस्ट नॉट देयर इन इंडिया। कंटेंट क्रिएशन में तुम जैसे कहते हैं ना, जो लोग पहले कि अच्छा हाँ भाई मेरे को गिटार बनाना अच्छा लगता है, बजाओ, शौकिया तौर पे बजाओ। तुमको पोइट्री करनी अच्छी लगती है, करो। These are all things which are nice things to do, which make you feel better about yourself. So it is a similar space. It is a great hobby to have. It is a horrible career to have. There will be very, very few people who will be able to make a good career out of it. या तुम्हारा एक कहीं established career है. So अगर तुम्हारा एक established career है, then you become a content creator as a side hustle and all of that, then that is absolutely fine. Do not think of it as your main career. मतलब आप इसको पैसे बनाने हैं इसलिए YouTube करना है या फिर इसलिए कंटेंट क्रिएटर बनना है, that's the wrong way. You start creating content and if you start liking what you're doing, then probably you go to a little bit deeper and वो कहते हैं ना validation कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं. Even then you should not. See, once you go down the space कि अच्छा हाँ मैं इसको monetize करूँगा, मैं इसके through clients लाऊंगा, if I do all of that, it becomes really, really time consuming. उतना टाइम उतना मेहनत तुम अपनी नौकरी पे करो, उतना टाइम उतनी मेहनत तो तुम अपनी पढ़ाई पे करो. That will give you a lot more in terms of returns. This should
आइडियली बी ओनली हॉबी, शौक है, शौक की तरह ही रखो। ये बात जो है वो 0.1% लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं, वही 0.1% लोग जाके जो है सक्सेस हो गए, बट तो 99.9% को तो नहीं करना चाहिए। और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है तो मतलब अब तुम हो सचिन तेंदुलकर तो बनो भाई सचिन तेंदुलकर। मैं तो सबको ये बोलूंगा भैया तुम तो नहीं बन पाओगे, 99% ऑफ द टाइम आई विल बी राइट। That is true. Okay with that. 99% of the time you will be right. But that 1% are the ones who will eventually make that difference. But ठीक है. I think जिनको करना होता है वो वैसे भी किसी की नहीं सुनते. ठीक है. बहुत सही यार. कोई फायदा नहीं है. Yeah. I think with that we can draw this podcast to a close. I think this is the first time we have hosted Ravi. और रवि मेरे ख्याल से अभी तो हम और भी कुछ चीजें कर रहे हैं, आपको तो हम बुलाते रहेंगे अब इसमें. How's your experience been with this conversation? Pretty nice. I expected it to be a little better. तुम कुछ फैंसी वैंसी सा पीछे बुक केस लगा के बैठा होगा, टूर वगैरह का माइक होगा. है भाई, है वो सब है, साइड में लगा हुआ है. पर अभी वो वाला सेटअप रेडी कर रहे हैं. अब होगा वो भी कर रहे हैं. आप बोल रहे हो ना प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी है, अभी तो बढ़ानी पड़ेगी. पहले हमारा ये था यार, मैं ना फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज लाइक यार ग्रीन स्क्रीन हटाओ या नहीं हटाओ. ठीक है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्योंकि अब ग्रीन स्क्रीन गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम ना, आप कुछ भी लगा सकते हो. करेक्ट. तो इसीलिए अभी तक ग्रीन स्क्रीन पे ही चलाया जा रहा है, लेकिन साइड में एक पूरा सेटअप है, हेलो वेलो नियॉन लाइट वाइट सारी लगी हुई हैं. इज जस्ट दैट वो होता है ना, अंदर से आना चाहिए कि भाई ये उसके लिए भी जो है ना, मैं बोलूंगा कि क्या तुम रेगुलरली हर हफ्ते में एक कंटेंट रिलीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. so if your effort part is figured out, then you start investing in it. Makes sense. So मेरा वही है, that's the reason why we had been fairly inactive for the longest period of time on the YouTube channel, because when we started creating, और मैं तो उस टाइम अकेले ही कर रहा था, रियलाइज कि यार ये चीज अकेले नहीं कर सकता. सस्टेनेबली अगर मुझे करना है और ये ब्रांड के साथ भी जुड़ा हुआ है तो इसके लिए लगेगा रिसोर्स. तो जब तक रिसोर्स नहीं आएगा तब तक इस चीज को मैं नहीं करूंगा. अभी जाकर के रिसोर्स आया है तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग दैट इन्वेंटरी नाउ. एक एक करके निकलेगा. आपका वाला थोड़ा सा टॉपिकल है, ये वाला तो ये पहले निकल जाएगा. बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. अब हम ऑफलाइन पॉडकास्ट भी करना चालू कर चुके हैं काफी. सो लेट्स सी हाउ दैट फिट गोस. ऑफलाइन ही करना पड़ेगा. ऑफलाइन ही करना चाहिए. ऑनलाइन पॉडकास्ट आर मतलब the best podcasts are essentially interviews at the end of the day, and those interviews need to happen in person. If it's a finance related thing, it needs to be in a boardroom. If it is a chit chat, it needs to be on the beach or coffee shop. गाड़ियों में भी तो लोग कर रहे हैं ना आजकल. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक ये भी जो एलिमेंट है ना, ये भी एक यूएसपी बना देता है ना. लोग गाड़ी में कर रहे हैं, एयरपोर्ट में कर रहे हैं, चलते कर रहे हैं. वॉकिंग वाला था ना, दैट वॉक द टॉक वाज अगेन अ फॉर्मेट. मैं वही बता रहा हूं ना. सो व्हाट शेखर गुप्ता डिड विद दैट, ही डेवलप्ड अ कैटेगरी कि अच्छा नो वन एल्स डिड दैट. एंड दैट वाज वेरी गुड, लाइट हार्टेड फॉर्मेट, और उसमें 50 चीजें होती थी. आई रियली लव दैट एज अ फॉर्मेट. बट उसको करने के लिए कितना पैसा और कितने रिसोर्सेस चाहिए वो सोचना है. आप तुमको मतलब वैसा आदमी मिलना चाहिए बम्बई में जिसका इतना बड़ा घर है कि गार्डन में तुम वॉक कर रहे हो. लोग इसीलिए तो गाड़ी में कर रहे हैं ना दोस्त, क्योंकि सड़क पे करोगे तो कहाँ से कहाँ. नहीं बट दिस इज अ गुड वन. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन दैट कैन बी डन. लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं. लोग वैसे ये खैर दिस इज अ नॉट ऑफ्ट आंसर्ड क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू थिंक रेप्लिकेशन, अगर आप किसी का आइडिया को कॉपी करके कुछ कर रहे हो, डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट इट? डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? कोई आपका आइडिया चोरी करता है, आपको कैसा लगेगा? अबे घंटा आइडिया जो है 2.5 रुपए किलो की औकात नहीं है आइडिया की. कर सकता है तो कर ले. अरे एक पिक्चर थी, मैं भूल गया कि कौन सी थी, उसमें एक कैरेक्टर था वो जगीरा का कि हाँ पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ मैं. चाइना गेट. तो उसके अंदर था ना कि तुम जो है बंदूक ले आएगा, तुम आदमी ले आएगा, बट वो जगीरा जैसा कमीनापन कहाँ से लाएगा?
आइडिया तुम ले आएगा भाई, बट वो जो, एंड इफ यू आर एक्चुअली बेटर एट एग्जीक्यूटिंग दैट आइडिया यू विल विन. सो आई डोंट रियली सी टू मच. आज के दिन में आई थिंक फ्रॉम इन अ कंटेंट, आई थिंक कंटेंट तो यार देखो, आई थिंक इज द सेम थिंग बीइंग टोल्ड बाय thousands and thousands of people. What needs to resonate probably is the personality. आपकी पर्सनालिटी जो ऑडियंस है उसको प्लीजिंग लगनी चाहिए या फिर उसके साथ रिलेट करनी चाहिए, तभी जाकर के जनता सुनेगी. पहले एक जमाने में कहानियों का दौर था, जो टीवीएफ में जो मैं था 4 साल, वो तो वो उस टाइम पे कहानियां बताई जाती थी. अभी इट्स मोर अबाउट अ पर्सन टॉकिंग अबाउट स्टफ, राइट? मैं बता रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर कोई ये क्यों नहीं कर रहा है, जो अपने रोड पे चलते हुए लोगों के वीडियोस नहीं होते हैं, तुम इंडिया में करना चालू कर. मैं बता रहा हूँ देयर इज अ ह्यूज, मतलब वॉक्स पॉप बोलते हैं ना, वॉक्स पॉप बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो है निकल के आ जाएगा, जो कि अपना जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है. तुम जीके के पूछना है, तुम जीके के पूछ ले, या आंसर दिस जीके क्वेश्चन, 100 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे. दिस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्मेट अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में कोई नहीं कर रहा है. अब वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कोई नहीं कर रहा है. ये हमने बहुत सोचा हुआ है. वही यार बैंडविड्थ वाली बात है दोस्त. लोगों को घर पे बैठे बैठे कंटेंट बनाना ज्यादा आसान लगता है, हमसे तो वो भी नहीं हो रहा. कसम से मैं ये इससे डिस्कस कर रहा था, एक मेरा जान पहचान वाला यूट्यूबर है जिसके मतलब 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो बड़ा यूट्यूबर है. तो मैं उसको बोला कि अबे यार तुम लोग ये जो है ना ये कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड आइडिया और कंटेंट. हाँ हाँ, हम लोग कभी कभी इस टाइप का थोड़ा बहुत करते रहते हैं. मैंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा कर सकता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन. तो वो तू क्यों नहीं कर पाया? मैंने कहा यार बहुत मेहनत भी लगेगी, इसलिए मुझसे नहीं होगा. बट दिस इज एन आइडिया आई बिलीव इज, मतलब ये केक पड़ा हुआ है, किसी को बस उठा के खाना है. अब किसी को, अब तो तुम बोल रहे हैं ना आइडिया मैं दे रहा हूँ भाई, तुम इसको कॉपी करो और तुम बनाओ. रोड पे जाके लोगों से जीके के क्वेश्चन पूछो, उनको 100 रुपया 500 रुपया दो. रोड पे जाके लोगों से पूछो कि अरे यार ये तो बड़ी शानदार तुम्हारी गाड़ी है, तुम क्या काम करते हो. रोड पे जाके तुम लोगों से पूछो कि अब तुम कितने के घर में रहते हो, क्या तुम्हारा भाड़ा है, तुम हमको अपने घर का टूर करवाओ. दीज आर वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, और ये सारे फॉर्मेट इंडिया में भर भर के चलेंगे, भर भर के चलेंगे. हम लोग को तो वॉयरिस्टिक टेंडेंसीज यार इतनी ज्यादा है कि भाई कॉलोनी के अंदर शर्मा जी की लड़की का किसके साथ में लफड़ा चल रहा है, उसमें तो हम लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. तो मेरे को अपने घर का टूर देगा, मेरे को ये पता लगेगा कि अरे तुमको ये नहीं पता है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और तुम IIT IIM पास आउट बन के घूम रहा है. आई आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आप कहाँ हो? हाँ जी मैं नौकरी करता हूँ. आपने कहाँ से पढ़ाई की? IIT IIM से की. इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? और अगर तेरे को नहीं पता हुआ, मैं बता रहा हूँ बहुत जनता को नहीं पता होगा IIT IIM पास आउट इंडिया में इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वहीं गेम हो जाना है बॉस, और वो तुम्हारा वीडियो 100% वायरल होगा ही होगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ content creation space. This is a white space which is being left in India. I hope someone picks it up. So basically मैं ये बोल रहा था कि यार देखो, मैं तो कंटेंट क्रिएटर इकोसिस्टम में 2014-15 से हूँ, जब चालू हो रहा था. मैंने ना ये कंटेंट फॉर्मेट्स की अगर आप बात करोगे ना, 2000 जब से यूट्यूब चालू हुआ है, सबसे पहला वायरल यूट्यूब, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल, सबसे पहला वाला कौन सा था? स्मॉश, इफ यू रिमेम्बर. ग्लोबली क्या करता था वो? They were creating these skit videos only. मतलब एक ही बंदा 2 रोल 2 पर्सनालिटीज प्ले कर रहा है, which and this is the same format. जो हर बात सुपर वुमन ने भी यही किया, भुवन बाम ने भी यही किया, हर बंदा जो चालू करता है आजकल, एल्विश यादव ने भी यही किया. ग्लोबली एनीथिंग, एंड दीज आर एवरग्रीन फॉर्मेट्स. आप जो बोल रहे हो, दिस इज समथिंग नोन एज वॉक्स पॉप. ये रोड पे चलते हैं. तो देयर इज दिस गाय कॉल्ड, इफ यू रिमेंबर, देयर यूज्ड टू बी चैनल कॉल्ड SNG कॉमेडी, या फिर हाँ SNG कॉमेडी था शायद. साहिल खट्टर नाम का एक बंदा था, द गाय हु प्लेड द सईद करवानी इन 83 मूवी. ही यूज्ड टू डू दिस. ठीक है, तो वो रोड पे जा करके लोगों से सवाल पूछता था, काफी चला था वो. एंड दिस इज अ फॉर्मेट व्हिच वर्क्स एवरीवेयर नाउ. द रीजन व्हाई इट इज वर्किंग मोर इज बिकॉज पहले हम लॉन्ग फॉर्म में 5 मिनट का वीडियो बनाते थे. अब वही वीडियो आपने रोड पे चले, आप शाम में 10-15 लोगों से बात की, 15 वीडियो बन गया ना आपका वीडियो, राइट? इंस्टाग्राम के लिए आइडिया है मेरा. इंस्टाग्राम के ऊपर अंधा पैसा दो और 50,000 रुपया, 50,000 फॉलोअर का है. यू डू दिस. वेरी गुड आइडिया एक्चुअली. बट नहीं यार, आई थिंक इट हैज बीन अ ग्रेट कन्वर्सेशन यार रवि. थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑन अ संडे. एब्सोल्युटली.
ये तो मजे, मतलब आई थिंक कंटेंट ही नहीं, आई थिंक स्टार्टअप के अराउंड भी कुछ कुछ चीजें हम कर रहे हैं, आपको बुलाते रहेंगे हम, and along with a few other guests, I think we'll have a great time chatting. Hopefully in an offline setup soon, but अभी तो फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए चलो यार, with this I think we can take it we can take care man. Bye.